You have been to different countries, आप पाकिस्तानी यूएस एलुमनाई नेटवर्क की मेंबर हैं, आपको यूएस जाने का भी मौका मिला. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस एंड हाउ दैट एक्सपीरियंस बेसिकली चेंज द वे यू सी द वर्ल्ड एंड डज दैट हेल्प यू विद योर करंट वर्क? एलुमनाई होने की वजह से या आपके ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डेवलप लिंक्स. नाउ दे हैव द टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड वी हैव द ह्यूमन रिसोर्स. अब नाउ आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स फॉर दिस कंट्री. If you want to say something in one line, what would that be? Take care of the water, please. Don't waste water. Hello everyone. Today we are honored with the presence of Dr. Shehla Nazanin. She is a PhD in environmental sciences. She is teaching in University of Peshawar since 2008. Her research work has been published internationally and nationally. Her work for climate policies and laws is very visible, especially in the KP's division. We are really honored to have her with us in Puan Perspectives today. Thank you so much for joining us today, Dr. Shehla. I hope you are doing well and very warm welcome to Puan Perspectives. So, Shehla, we have heard these buzzwords: climate change, climate emergency. All the world is working on it right now. But what is climate change? What is climate emergency? We need to understand first the term. अगर आपने किसी चीज़ को मिटिगेट करना है, उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो टर्म बेसिकली क्या है. इफ़ यू से क्लाइमेट चेंज एंड देयर इज़ वेदर वेरिएबिलिटी, इफ़ देयर इज़ वन ऑड इवेंट, then it's fine. But if the changes it taking place at certain pace and it's becoming a pattern, like increase in temperatures, changes in the rainfall patterns, then you will call it the climate is basically changing. And for climate you need at least 30 years of data to declare any place that now the climate of this certain area has changed. When you talk about climate emergency, this is something very easy. देखिए, जिस तरह कि किसी बंदा है, उसको एक हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है, इट्स एन एमरजेंसी जिसमें आपने उस बंदे को डील करना है. क्यों? क्योंकि अगर आपने उस टाइम पर उसको एमरजेंसी में आपने उसको फर्स्ट एड नहीं प्रोवाइड की, ही विल डाई और इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा, दैट कैन नॉट बी रिवर्स. सेम इज़ द केस विद द क्लाइमेट एमरजेंसी. देयर आर फ्यू सर्टन थिंग्स, वंस दे आर डैमेज दे कैन नॉट बी रिकवर्ड. इट्स एन इरिवर्सिबल डैमेज. Exactly. एंड हम जब अब ग्लोबल पर्सपेक्टिव को देखते हैं और वी सी कॉप्स हैपनिंग एंड पीपल contributing to it a lot, so how do you think that these global perspective address the climate emergency? To some extent, because ये बेसिकली चीज़ स्टार्ट हुई थी 1992 में ड्यूरिंग द अर्थ समिट. The convention was presented and Pakistan is signatory and Pakistan has ratified the convention. Then उन्होंने ये डिसाइड किया कि हर साल कॉप्स होंगी, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जो है वो हर साल होंगी. अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट अभी तक के जो चीज़ें हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, एक तो UNFCCC है, एक क्योटो प्रोटोकॉल है और एक आपके पास तीसरा जो पेरिस अभी आपके पास एग्रीमेंट आया है. अब इन तीनों को इफ़ यू लुक एट ऑल दीज एग्रीमेंट्स, तो उनमें आपने क्लाइमेट, आप UNFCCC को देखें तो दे हैव गिवन द टारगेट कि यू हैव टू रिड्यूस योर ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन बाय 1990 लेवल बाय द ईयर 2010. ठीक है, 2000 में आप नहीं करनी. क्योटो प्रोटोकॉल ने एक और मैकेनिज्म दिया कि नो, यू हैव टू रिड्यूस 5.2% मोर that you were doing in the 1990 level by the year 2010 and 12. अब ये चूँकि टारगेट इस किस्म का था कि जिसमें आपकी जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, दे हु आर मेजर एमिटर्स, they were not interested in signing the Kyoto Protocol. अब अगर आप इसको देखें तो अच्छा, एक तो कंसर्न उसमें ये थे, आप if you look at Kyoto, it took quite a long time, 7 years to get entered into force. The reason is यही आपकी ग्लोबल आपकी जो एक चल रही है पॉलिटिक्स चल रही है. अब उसमें आपका at that time US was contributing 36.1%, आपका रशिया was contributing 17.4%. And the concerns was that India and China were not the part of that target because they were put into the developing countries list. Yeah. So I would say not to very much extent, but the funds that they have created. Because of that, the developing countries like us who are victim to the climate change, not the contributors, to some extent we are getting benefit of all these things. Secondly, this has helped us to raise this issue at a global level. Otherwise, अगर ये कन्वेंशन और ये कॉप्स और ये चीज़ें नहीं हो रही होती, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को आज भी हम
क्लाइमेट डिनायर्स को आज भी यही समझा रहे होते हैं कि देयर इज अ रियल फिनोमिना कॉल्ड क्लाइमेट चेंज. Exactly, exactly. And do you really think that all these COPs and things that happening at the global space do help change the national resources and national policies, or help shape them in a different way? Yes, definitely. Like we have signed, when we are signatory to any of the convention or the protocol, we design our policies according to that protocol, convention, and agreement. And then keeping in mind all what is happening real, we need to get funds from these. So unless and until we are not aligned, like many of the conventions that we have signed, in all the conventions, basically I teach environmental laws and policies, so I do know that in all the conventions that Pakistan is signatory, there is one provision that you do have legislations of this thing in your country. Exactly. तो अगर हम signatory नहीं होते तो हमने legislations भी अभी तक नहीं बनाई होती. When you have legislations, then you can only apply for the funds. And then if you know, we change the ministry name, we change it to Ministry of Climate Change. Exactly. And when we talk about mitigating climate change, how do you see private businesses and people playing their part in it? Now, depending on the type of business in whichever you are, like हम चले होटल्स की एग्जांपल ले लेते हैं. तो होटल का एक बिजनेस है, या आपके पास टूरिज्म की एक इंडस्ट्री है, या आपके पास वैसे ही कोई इंडस्ट्री आपकी लगी हुई है. तो देखिए, मैं आपको ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जाऊँगी. सो मोस्ट ऑफ द पीपल शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट बेसिकली वी कैन डू, और इंडिविजुअल कैन प्ले देयर रोल. एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी, आप यू कैन मेक योर बिल्डिंग्स एनर्जी एफिशिएंट. यू कैन रिड्यूस द वाटर कंजम्पशन को आप रिड्यूस कर सकते हैं. देन आपके पास ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं, आप उनको बिल्ड कर सकते हैं. क्लाइमेट रिजिलियंट बिल्डिंग्स आ गई हैं. नाउ वी हैव यू हैव बिल्डिंग कोड्स, ग्रीन बिल्डिंग कोड्स, ये सारी चीज़ें हैं. मैं होटल का एक बताना चाहूँगी कि जिसमें हम रुके हुए हैं, उन्होंने जगह जगह पर हर कमरे में लिख कर लगाया हुआ है कि आप इफ़ यू यूज़ दिस टॉवल, लाइक इफ़ यू यूज़ 2-3 टॉवल्स देन वी हैव टू वॉश इट. तो इसमें हमारी वाटर कंजम्पशन जो है ना वो होगी. सो इफ़ यू वांट टू सेव वाटर, सो प्लीज़ जस्ट यूज़ 1 or 2 टॉवल्स अ डे. दिस इज़ समथिंग वेरी इनकरेजिंग एंड दिस इज़ समथिंग वेरी गुड. सेकेंडली, उन्होंने जो ग्लास की बॉटल्स हैं वो रखी हुई हैं. वो जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स की बॉटल्स हैं, दे हैव रिप्लेस्ड इट. नाउ दिस इज समथिंग वेरी इनकरेजिंग. ये वो सिंपल स्टेप्स हैं जो आप भी कर सकती हैं, मैं भी कर सकती हूँ. आप गाड़ियों की सर्विस कराते हैं, आप बर्तन धोते हैं, ठीक है, आप खुद अपने लिए इसको इस्तेमाल करते हैं. मैं अक्सर वज़ू की एग्जांपल देती हूँ कि आपका तो वज़ू मकरू हो जाता है जब आपने पानी कॉन्टीन्यूसली खोला हुआ है एंड यू आर वॉशिंग योरसेल्फ. तो ये तो मेरे ख्याल में, मैं आई एम नॉट मौलवी कि मैं इस पर कोई फितवा दे सकूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं ये बता सकती हूँ कि आप पानी ज़ाया कर रहे हैं. बिल्कुल. लेट्स से कि 3-4 डेकेड्स बैक या 5-6 डेकेड्स बैक, ये इस्लामाबाद को आप ले लें, पेशावर को ले लें, बड़ी सिटीज़ को ले लें, ये सारी उन्होंने सीमेंटेड कर दी है ना, ठीक है. अब ये वो पानी जिसने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना था, नाउ इट्स बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द ग्रे वाटर. वो फ्रेश वाटर आ रहा है, सड़कों से रन ऑफ होकर वो ग्रे वाटर में मिक्स हो रहा है. तो वो हमारे पास जो एक रिसोर्स है, हमने खुद उसको करके देन वी आर क्राइंग कि वी आर वाटर स्कार्स कंट्री एंड अब हमें इन चीज़ों की और वो उन चीज़ों की ज़रूरत है. सो हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम किसी उस गलत सोच में हैं कि वी आर समहाउ बेनिफिटिंग आवरसेल्व्स विद दिस. एग्जैक्टली. बट also coming back to your point of making green buildings, हम जब different global challenges की बात करते हैं other than climate, तो हम लोग being the third world country अक्सर हमें ये एक सुनने को मिलता है कि because we are not very well economically, so how are we going to manage these things? Okay, we want to make a green building, but that costs a lot more. So how are we going to sustain that with this economic condition that we are going through right now? Yes, now this is a challenge. Whenever you talk about environmental protection, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ कि बिल्कुल ये दो सोतने नहीं होते हैं. दे आर जस्ट लाइक दिस कि व्हेन यू गो फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तो डेवलपमेंट इफेक्ट होती है. डेवलपमेंट की तरफ जाएं तो एनवायरमेंट इफेक्ट होती है. अब इसमें एक चीज़ है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. आपका कानून है, आपका खुद ही आपके पाकिस्तान का कानून है. 1983 में आपने ऑर्डिनेंस बनाया था, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस. देन इन 1997 आपके पास पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था. 2010 में आपके पास 18 अमेंडमेंट के बाद अब हर सूबे का अपना है, और हर सूबे के एक्ट में आपका ये सेक्शन मौजूद है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का कि
अनलेस एंड अनटिल आपकी किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होगी तब तक वो अप्रूव नहीं होगा. Now where's the problem? The problem is implementation of that section. Yeah. अगर आप बहुत seriously उसको implement करें, to some extent they are trying, EPAs are trying, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर थोड़ी सी जो problems हैं, तो वो जो बजट का मसला है ना, वो आप शुरू में ही हल कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि आपने बिल्डिंग बनाने से पहले या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से पहले या इंडस्ट्री लगाने से पहले ही उसकी इम्पैक्ट असेसमेंट करनी है. सेकेंडली, वी डू हैव दिस क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें, वी डू हैव दिस क्लाइमेट चेंज फंड्स अवेलेबल, जिसमें आप जो है इनिशिएटिव्स दे सकते हैं. जिस तरह आप सोलराइजेशन के अगर आप देखें तो बैंक्स ने ये चीज़ स्कीम स्टार्ट की हुई थी कि वो आपको आसान किस्तों के ऊपर जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे थे. सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स, दो इट इज़ अ बिग चैलेंज. डेफिनेटली जो बंदा भूख से मरो, आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि अपने रिक्शे की ट्यूनिंग जाके कराओ. Exactly. तो वो कहेगा अच्छा तो रिक्शे की ट्यूनिंग करा लूँगी तो मैं घर जाके मैं खाऊंगा क्या. दिस इज़ अ चैलेंज, लेकिन इट कैन बी डन विद द गवर्नमेंट एफर्ट. अब ये वो जगह है जहाँ पर गवर्नमेंट का एफर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आना चाहिए, क्योंकि खुद से आप ये चीज़ नहीं कर सकते. We cannot put the onus only on the individual. Governments have to play their definitely. role. And also जिस तरह से आपने इनोवेशन की बात की कि इसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन भी प्ले करती है अपना रोल, तो वो आपको किस तरह से लगता है कि किस तरह से इंक्लूड की जा सकती है going forward, क्योंकि the world is changing, as we were talking earlier as well, the world is changing and we have to move ahead with it, otherwise we will be left behind, and we had been left behind Already. because of these things. ये इनोवेशन की जब आप बात करें तो आई वाज थिंकिंग कि अब तो वो जो इनोवेशन जिसे हम कह रहे होते हैं ना, दुनिया ने वो करके उसको पुराना भी कर दिया. तो एज आई एम हेयर इन इस्लामाबाद फॉर दिस AI एंड डेटा साइंस वर्कशॉप, तो मैं उसमें ये सोच रही थी कि इस टाइम पे जो इनोवेशन है जो हम कर सकते हैं, दैट इज़ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द AI into these climate change data sets and all these the scientific जो हमारे पास है. कंसिडर योरसेल्फ कि आप एक होटल के ओनर हैं, तो आप AI को कैसे उसके में यूज़ कर सकते हैं. तो इस टाइम पे जो इनोवेटिव सोल्यूशन है ना, जो वैसे तो हम इनोवेटिव इसे कहते हैं कि आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले जाएं और आप ग्रीन बिल्डिंग कोड्स की तरफ चले जाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की तरफ चले जाएं, ग्रीन एफिशिएंसीज और इनकी तरफ चले जाएं. नाउ दे आर नो मोर द इनोवेटिव सोल्यूशंस. ये ऑब्सोलीट बल्कि हो चुके हैं. ये दे आर ओल्ड सोल्यूशंस जिनको हमने अडॉप्ट नहीं किया था. एंड नाउ बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट एमरजेंसी, क्योंकि अब हमें ऑब्वियसली चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं, बिकॉज वी आर सफरिंग मोर एंड मोर. तो उसके लिए ये है कि मेरे ख्याल में जो इस टाइम पे मैं इनोवेटिव सोल्यूशन देना चाहूँगी वो ये होगा कि इनकॉर्पोरेट AI इनटू ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आपके पास जो है एक तो चूँकि ज़ाहिर बात है इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो आपको जो सोल्यूशंस और वो चीज़ें देगा, इट वुड बी मच बेटर कि अब आप 20 साल मज़ीद इंतज़ार करें और मैनुअली वो चीज़ें जो है वो करने की कोशिश करें. शैला, जिस तरह से आपने इनोवेशन की बात की, तो मुझे लगता है कि एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि वी आर ऑलरेडी लैगिंग बिहाइंड, बट द वर्ल्ड हैज़ मूव फॉरवर्ड एंड यू हैड द एक्सपीरियंस ऑफ experiencing that outer world. You have been to different countries. आप पाकिस्तान US Alumni Network की member हैं, आपको US जाने का भी मौका मिला. So how was that experience and how that experience basically changed the way you see the world, and does that help you with your current work? एलुमनाई होने की वजह से या आपकी ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डेवलप लिंक्स. नाउ दे हैव द टेक्नोलॉजी, ठीक है, एंड वी हैव द ह्यूमन रिसोर्स. अब नाउ आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स फॉर दिस कंट्री एंड दे हैव बेसिकली टेक्निकल डेवलपमेंट उनके पास है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, फाइनेंशियल वो हमें सपोर्ट करते हैं. तो ये लिंकेज डेवलप जो होता है बिकॉज ऑफ दीज एक्सचेंज प्रोग्राम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि मैं पाकिस्तान में कितनी भी डेटा को एनालाइज करना चाहूँ या कोई भी लेट्स से फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन है और हमारे पास फिल्टर पेपर के ऊपर हमने उसको सारा कलेक्ट कर लिया है, लेकिन टू एनालाइज दोज फिल्टर पेपर्स आई नीड अ वेरी वेरी हाई टाइप ऑफ अ टेक्नोलॉजी जो मेरे पास शायद अवेलेबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं. तो वो फिर जो लिंक हम डेवलप करते हैं वो हमारे लिए बड़ा फ्रूटफुल होता है कि फिर हम वो चीज़ें जो हमने वहाँ पर की हैं फिर हम उनको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करें. So are you still, in touch with the PON program? Do you still participate? And how is still helping you grow? Yes, every time when they announce any workshop, I know I will learn a lot. अभी भी मैं यहाँ पर PON की workshop ये जो AI and data science के ऊपर है वही attend करने के लिए आई हूँ. Though I am from environmental sciences, और जिस तरह कि आपने भी पूछा और बहुत सारे लोग पूछते हैं, मेरे अपने फैमिली में से लोगों ने पूछा कि आप
क्या करेंगी इसमें? मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी जब मैं वहाँ से फिर कर आ जाऊँगी, क्योंकि दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. यू डू लर्न. अब हमने बहुत सारी, हम जिन फील्ड्स को सेपरेट कंसिडर करते हैं, नाउ दे आर नो मोर इंडिविजुअल फील्ड्स. आपका मर्जर है हर फील्ड का, एक फील्ड दूसरी फील्ड में मर्ज होकर आपको बेनिफिट करती है. तो ये जो आपके पास इंटीग्रेटेड अप्रोच है, दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए तो पॉन की जितनी वो आती हैं, आई मस्ट पार्टिसिपेट. और मेरी ये बड़ी, और इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव. इट्स नॉट लाइक यू जस्ट अप्लाई एंड यू गेट सेलेक्टेड. सो इफ़ यू आर अ रेलिवेंट पर्सन, सो दे विल सेलेक्ट यू, और दे एक्सपेक्ट कि व्हेन यू विल गो बैक और आप इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे. Thank you so much, Shayla. And if you want to say something for our audience, for people, if you want to say something in one line, what would that be? Take care of the water, please. Don't waste water. I have seen कि ये हमारे पास, ये एक सिंपल चीज़ है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि वी आर ऑलरेडी बिकमिंग अ वाटर स्कार्स कंट्री. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द वाटर. दो आई कैन से सो मेनी अदर थिंग्स, लेकिन आई वुड जस्ट से अ सिंपल वर्ड. मैं ये भी कह सकती थी प्लांट्स लगाएं. वी ऑलरेडी आर डूइंग इट, लेकिन प्लीज़ डोंट वेस्ट वाटर. सेव दिस वाटर, क्योंकि आने वाली जनरेशन्स के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा. Thank you so much for your time, Shayla. It was amazing talking to you, and I hope we stay in touch and we keep working together on these amazing things that you are working on. Thank you so much. Thank you so very much for calling me here.